براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، اس لیے کہ گوئنگ فارورڈ آگے جاتے ہوئے جو رول ڈیجیٹائزیشن، جو رول آٹومیشن اس دنیا میں ادا کرے گی، سندھ حکومت نے اس کو واضح رکھتے ہوئے بہت زیادہ فوکس ڈیجیٹائزیشن پہ بھی کیا ہے۔ موونگ فارورڈ یہ کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ میں سوچتا ہوں، اس لیے ہم تو آبویسلی اولڈ اسکول ہیں، ہمیں 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور جب ہم پڑھے تھے اس وقت 40 سال 45 سال پرانی ٹیکنالوجی تھی، دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ سوال کا جواب کیسے دیا جائے۔ ہمارے لیے سب سے ضروری ہوتا تھا کہ ہاؤ ڈو یو آنسر اے کوشچن واز پٹ ٹو یو۔ اب دور چینج ہو گیا ہے، اب دور آ گیا ہے کہ سوال کیسے پوچھا جائے، بیکاز آپ کے پاس یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوری دنیا کی نالج آپ کے اندر ہے، لیکن اب آپ کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ سوال کون سا پوچھیں تاکہ آپ کو جواب مل سکے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کریکولم میں، وہ آگے ہم جب ایجوکیشن کی بات بتائیں گے تو ادھر ذکر کروں گا، ہم نے اپنی گورننس میں یہ کوشش کی ہے کہ ڈیجیٹائزیشن ہو۔ تو شروع کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ڈیجیٹائزیشن سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی کمرے میں اکتوبر کے مہینے میں پچھلے سال سندھ ہاری کارڈ کا اجرا کیا تھا۔ ہم وہ پروفیشن جو شاید دنیا کے اولڈسٹ پروفیشنز میں سے ہے، کھیتی باڑی، اس کے اندر ان فارمرز کے لیے ڈیجیٹائزیشن لے جا رہے ہیں، اور ہم نے بے نظیر ہاری کارڈ ایک ڈیجیٹل رجسٹریشن آف فارمرز شروع کی تھی۔ اسی کمرے میں جیسے میں نے بتایا، اسی دن چیئرمین صاحب نے اس کارڈ کا اجرا بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنا بھی ہاریوں نے، فارمرز نے شروع کر دیا تھا۔ اس وقت تک جو اس کے پلان تھے کہ جی یہ سبسیڈائز فارم مشینری ملے گی آپ کو تھرو دیز ہاری کارڈز، واٹر کنزرویشن ٹیکنالوجیز جو ہم کام کرتے رہے ہیں پہلے، اس کو ہم نے ایک آرڈر میں لائے تاکہ واٹر کورسز کی مرمت ہو سکے، انٹرسٹ فری لونز اور فائنینشیل اسسٹنس ڈیورنگ ڈیزاسٹرز، خاص طور پہ فلڈ 2022 کا ہر ایک کو یاد ہے، اور اس پہ ہم نے یہ کیا تھا۔ اور یہ ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے، اس کے ایک دم بعد جب ہم نے کیا تھا تو ایک فارمر کے ویوز تھے ریگارڈنگ بے نظیر ہاری کارڈ۔ طوفان اور بارشیں یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، ہاری کی اصل خوشی اس کی اچھی فصل ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ دے کر ہمارا تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ شکریہ سندھ گورنمنٹ، شکریہ بلاول بھٹو زرداری۔ 2022 کے فلڈز میں ہم نے اس ہاری کارڈ کو سب سے پہلے استعمال کیا۔ 2022 کی فلڈ کے بینیفیشری اس کو پیسے دیں گے، فلڈ تو 22 میں آیا تھا۔ 2024 کے اندر، یعنی یہ پچھلے ایک سال میں، ہم تقریباً 10 ارب روپے 1,68,506 فارمرز کو تھرو دس ڈیجیٹل مینز دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی بھی جو ہماری اسکیمز ہیں، چاہے وہ میکنائز فارمنگ کے لیے امپلیمنٹس دینا ہو، چاہے جو ہمارے واٹر کورسز لائن کرنے کا پروگرام ہے جو ہم فارمرز کو اسسٹ کرتے ہیں، ان سب میں ہم اس ہاری کارڈ کو استعمال کریں گے۔ ہم نے جب میں نے یہ اعلان کیا تھا when I presented my performance، وہ پچھلے 5 سال کی آپ کو یاد ہوگا، اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کریں، جو ابھی میں نے شروع میں بات بتائی کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرین یہ نہیں کرنا کہ جواب مل جاتے ہیں، بہت ساری ریسورسز موجود ہیں، لیکن سوال کیسے پوچھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ انڈر پرو پور انیشیٹو پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت اس سال 13,428 اسٹوڈنٹس کو ہم 3 ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں، کراچی میں NED یونیورسٹی، یامشورو میں میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس ٹیکنالوجی، اور سکھر میں سکھر IBA، اور ہم نے پھر یہ ڈویژنز بھی
कराची डिवीजन और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट NED को दिया, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन हमने मेहरान को दिया, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना डिवीजन हमने सक्खर IBA को दिया। इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। इनको फॉलो भी कर रहे हैं जैसे जैसे ये निकल रहे हैं। इनमें से 2528 ने जॉब्स हासिल कर ली है। आखिरी बैच जो 357 का है, 2357, ये मई 2025 में ग्रेजुएट करेगा। और इसकी सक्सेस को देखते हुए ये हमारा इरादा है कि अगले साल भी इसको एक और इसका स्कोप बढ़ा के इसको हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट ने 2024 के अंदर 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये हम हर एक को मॉनिटर भी करते हैं, जो उसके बाद उनकी मदद भी दें कि जॉब्स लेने में, प्लस उसके साथ साथ उनकी जो प्रोग्रेस है या उनको अगर मजीद किसी ज़रूरत है ट्रेनिंग की, वो भी IT डिपार्टमेंट उनके साथ लिएज़ॉन में रहता है। एक और प्रोग्राम भी है, ये इंडस्ट्री एकेडेमिया ब्रिज प्रोग्राम के नाम से 3000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो 3rd या 4th ईयर में थे, उनकी जो IT ट्रेनिंग उसको इन्हांस करने के लिए प्रोग्राम किया था। और ये हमने कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट्स में 758 ये ट्रेनीज थे। हम 3000 स्टूडेंट्स और 200 टीचर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स इनकी इन्हांस कर चुके हैं जो IT नॉलेज है। इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट आजकल बहुत ये डेटा के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से बहुत बातें भी हो रही हैं, उससे सिलसिले में भी आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे हम जल्द। जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसने हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक बनाया है और इसका है कि ये डेटा सारा कलेक्ट करता है। इससे डेटा अवेलेबल भी है, जो लोग डेटा हासिल करना चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट को मदद मिलती है। और ये भी एक IT के अंदर हमारी एडवांसमेंट है। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, उसके बारे में आगे मैं आपको फिर बताऊंगा, इसलिए कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें भी IT का इस्तेमाल करना, इसमें अगर आप देखें हमने 3 पोर्टल्स बनाए हैं। ये बेनिफिशियरी पोर्टल है, कोई भी बेनिफिशियरी अपना शनाख्ती कार्ड डाल के जा सकता है और अपना स्टेटस चेक कर सकता है कि मेरा केस अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं किस स्टेज पे हूं, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। इसके साथ साथ अगला जो ये हमारा SPHF हीट मैप है, ये भी टेक्नोलॉजी में आई थिंक ये हमने दिखाया था। हमारे पास वर्ल्ड बैंक वाले भी आए थे और लोग भी हैं जिनको हम शोकेस करते हैं। मैं इधर बैठा हुआ या कोई भी शख्स बैठा हुआ जिसको एक्सेस है इसका, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी तालके की किसी भी देह में जाके जो भी बेनिफिशियरी है उसके घर का स्टेटस देख सकता है। वो सामने अगर आप देख रहे हैं, और ये पूरे हमारे 2 मिलियन से ऊपर डेटाबेस है जो कि हमने किया हुआ है। ये आपको ऐसी सैंपल चल रहा है। इसके साथ साथ जो हम आगे जा रहे हैं, ये हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग। हम क्या करते हैं, ड्रोन के साथ गांव के ऊपर जाते हैं, उसकी सारी डिजिटल मैपिंग कर लेते हैं और फिर हमें उसमें जो गैप्स हैं पता चलते हैं। ये अभी पायलट है, मुझे याद नहीं 100 के करीब कुछ विलेजेस हम कर चुके हैं, लेकिन इरादा है कि ये पूरे सिंध में हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। अब ये अच्छा, मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये पिछले 1 साल में हुआ है, वो पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस साल ये डिजिटाइज किया। आप एक ऐप बनाइए, आप मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अपनी एक्साइज लेवी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सारा ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू एन ऐप। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन ऑक्शन प्रीमियम नंबर प्लेट का हमने इस साल किया, वो भी आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स, जो नए नंबर प्लेट्स के लिए, वो भी आप ऑनलाइन ही सारा कर सकते हैं।
सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो डिफरेंट फूड आउटलेट्स हैं उनके लिए एक ऐप बनाई हुई है कि वो अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपनी जो लाइसेंस फी है, लाइसेंस रिन्यूअल्स, वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई हुई है कारोबार ऐप के नाम से, कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है वो इस ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकता है, अपनी परमिट्स ले सकता है, आपको जो मसले हैं जिस डिपार्टमेंट के साथ है वो बता सकता है। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम इतनी ज़्यादा डिसमिनेट नहीं कर सकें, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे ताकि बढ़े। और इसके अंदर हम जो पोर्टल है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती है बिजनेस शुरू करने की, हम उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 130 रेगुलेटरी परमिट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जाते हुए कि वो परमिट्स ऑनलाइन ही लोग ले सके। ई प्रोक्योरमेंट, ये हमने इसको तकरीबन 8-9 महीने हो गए हमने शुरू किया है, लॉन्च इट, कि हम हर डिपार्टमेंट की एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान से लेके और उसकी अवार्ड ऑफ टेंडर तक सारा ऑटोमेट करें, सारा फेसलेस हो, ताकि आपके कम से कम इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई ऐसी बात हो। वो हमारा ई पैड्स के नाम से ई पैक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम हमने अप्रैल 24 में इसको सॉफ्ट स्टार्ट किया था, और इस वक्त तक हम 5,658 सप्लायर्स को रजिस्टर कर चुके हैं, 408 टेंडर्स पब्लिश हुए हैं, 308 प्रोक्योरमेंट्स कंप्लीट हुई हैं और 883 इन प्रोग्रेस हैं। हमने मास्टर ट्रेनर्स, ऑफिसर्स और इवन बिडर्स को ट्रेन करने का एक प्रोग्राम बना हुआ है, और हमारा इरादा है कि हम ग्रेजुअली पेपर ट्रांजैक्शन से ख़त्म करके ये सारा के सारा एक पोर्टल पे ले आएंगे। ये एक और इशू हमारा काफ़ी अरसे से था कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर वो गंदम का, जो आपको पता है कि गंदम नाकस है, चोरी हो गई, मट्टी भरी हुई है। हमने एसजीएस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हर गंदम की बोरी को चेक किया, और ये मैं काफ़ी एक फेयर सेटिस्फैक्शन से कह सकता हूँ कि हमारे पास स्टॉक में जो कुछ भी मौजूद है वो वाकई उधर है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे वो हमने को एक्शंस लिए, जहाँ पे गंदम कम थी या सही क्वालिटी की नहीं थी उसको रिप्लेस कराया थ्रू द पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ दोज गोडाउन्स। तो अभी अगेन ये फिर मैं डाइग्रेस कर जाऊंगा, इस दफ़े हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 1.3 मिलियन टन्स से ऊपर मौजूद है गंदम, और हम प्रोक्योरमेंट ड्यू टू आवर नेशनल फिस्कल पैक्ट जो हमने साइन किया हुआ है ना, हम रिजर्व प्राइस दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सिंध हुकूमत में हमने काफ़ी इसको कैबिनेट में डिस्कस किया कि हमें डर है कि इस साल गंदम की पैदाइश कम हुई और अक्टूबर नवंबर में जाके एक मसले क्रिएट होंगे। हमारी इस नॉन फार्मर फ्रेंडली जो एक रिजीम, और इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया था। सिंध पुलिस के अंदर S4 सिस्टम जो हमने, हमारे 42 टोल प्लाजाज हैं प्रोविंस के अंदर, तो उनकी एंट्री एग्जिट पे हम फेशियल रिकग्निशन के साथ, नंबर प्लेट रिकग्निशन के साथ हमने लगाए हुए अपने कैमरास, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे सारा डेटा आता है, और इसी वजह से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो, और किसी गाड़ी का हमें पता होता है, वो ट्रैक हो जाती है, और काफ़ी इसकी सक्सेसेस हैं। वो मैं भी आई गेस प्रॉपर नहीं, किसी वक्त मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि स्पेसिफिकली आपको बताए भी इसके बारे में। हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स को हमने डिजिटाइज किया पिछले 1 साल में। पिछले 3 महीने में हमने लाइसेंसिंग ब्रांच में बहुत ज़्यादा बेहतरी की है। पहले लाइसेंसिंग ब्रांच के लिए सिफारिशें आती थी कि मुझे पोस्ट को, अब कोई सिफारिश नहीं करता, इसलिए इतना ज़्यादा ऑटोमेट हो गया है। और पिछले 3 महीने में 1 लाख से ऊपर लाइसेंसेज हमने ऑनलाइन डिलीवर किए हैं। रिपीट ऑफेंडर्स की ई टैगिंग करना, ये सब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आए करना। मैंने बात की थी जो हमने नंबर प्लेट ऑप्शनिंग की थी प्रीमियम नंबर्स की, और इसका मकसद क्या था
कि जो पैसे इससे मिलेंगे उससे हम घरों को तामीर करेंगे। इसके थ्रू जो हमने पैसे इकट्ठे हुए उसमें से 640 मिलियन रुपए थे, जिसमें हम 2100 फ्लड अफेक्टीज के घर, और ये एक बेनिफिशियरी का मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हमने किया। और ये जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग में फ्लड है, इसमें हर स्ट्रीम के अलग लोग हैं कि जहाँ से पैसे, इसलिए हमें प्राइवेट लोगों ने भी डोनेशंस दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी पैसे हैं, लोन्स के पैसे हैं, उन सबको हम जो है अलग अलग स्ट्रीम में चलाते हैं, और ये पैसे भी हमने ये इस्तेमाल किए थे। अब मैं आ जाता हूँ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है पिछले एक साल में। अगेन मैं वो सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो या तो कंप्लीट हुए हैं या कोई ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। मेरी एक बड़ी कमजोरी है, मैं आपको पता है मैं ग्राउंड ब्रेकिंग पे कभी नहीं जाता हूँ, मुझे जिंदगी में याद है शायद मैंने मुझे 8 साल हो गए, 2 बार गया हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग पे। इसलिए मैं कहता हूँ बन जाए चीज़, उसके बाद उसका इनॉग्रेट किया जाए जब वो लोगों के काम में हो। तो इसीलिए आपको बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग्स में हम नज़र नहीं आऊँगा, और मेरी वजह से फिर मेरे वुज़रा भी उसी मोड में चले जाते हैं, हम नहीं करते ज़्यादा। तो इसलिए ये वो चीज़ें जो कंप्लीट हो गई, 1-2 प्रोजेक्ट ज़रूर दिखाऊंगा जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिन पे काम अभी चल रहा है। सबसे पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं, जो ये 12 मार्च 2024 से लेके आज तक। टोटल लेंथ तकरीबन 2500 किलोमीटर है, टोटल कॉस्ट तकरीबन 54 अरब रुपए, 53.5 बिलियन। इसके अलावा जो हमारे फ्लड अफेक्टेड रोड्स थे, 120 फ्लड अफेक्टेड रोड्स जिनकी 704 किलोमीटर टोटल लेंथ थी, और ये बड़े बड़े रोड्स हैं, आगे कुछ आपको दिखाऊंगा भी मैं। इसमें तकरीबन हम 41.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 42 बिलियन हम कर चुके हैं। ये लिखना नहीं चाहिए था, खैर लिख दिया तो बताता हूँ। इंशाल्लाह 527 किलोमीटर रोड और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ रोड्स आपको दिखाते हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। ये 75 किलोमीटर का रोड है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में। ये किप्रो तालका और उमरकोट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। सरदार शाह साहब बैठे, ही कैन टेल यू इफ यू आस्क हिम कि इसका कितना फायदा लोगों को हुआ होगा। इसलिए कि यहाँ पे मैंने भी ये रोड बनने से पहले, बनने के बाद मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, बनने से पहले मैंने इस पे ट्रैवल किया है और इस रोड पे चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइन चैनल भी नजर आ रहा है, ये भी अभी लाइन किया होगा, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि कब किया है, जो ये कैनाल लाइनिंग हुई हुई है। ये 58 किलोमीटर थरपारकर में अली बंदर से डीपलो का रोड है जो इस साल कंप्लीट हुआ है। ये टंडो अलायार है मीरपुर खास में, ये जो है टंडो अलायार से बेलारो शाख तक 33 किलोमीटर का रोड है। ये सक्कर में ढांडी से खानपुर वाया ठिकराटो, ये नासिर शाह साहब और बैठे हैं, जहाँ इकराम साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनके ये 25 किलोमीटर का रोड है जो ये कंप्लीट हुआ है। ये बदीन में पंगरियो वंगो रोड 23 किलोमीटर का। ये मीरपुर खास में झिलोरी से एसफॉल्ट है तालका शुजाबाद में। इधर ये पोर्ट मेरान हाईवे जो है ये रिबिल्ड किया हमने लांडी से पोर्ट कासिम। खजूर के दरख्तों से समझ होंगे खैरपुर है, खैरपुर का ये रोड है परियालो, NH टू परियालो वाया फुलवाण राजीगोट 8 किलोमीटर का। ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में रोड है, हैदराबाद मीरपुर खास रोड से राव की बस स्टॉप, शर्जील मेमन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके अलावा ये जो फ्लड के हमारे रोड की रिपेयर्स है, ये थरपारकर में एक रोड है 10.5 किलोमीटर का। ये डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में समंदर के साथ साथ रोड है, देख रहे हैं। ये बदीन से जावल रोड से
डिस्ट्रिक्ट बदीन में शेरवा, और इधर भी देखेंगे इसके साथ रोड के साथ एक लाइंड कनाल है। हम बिलीव करते हैं हमें पानी, और इस पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया है। आज इतनी ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इंशाल्लाह अगले दफ़े जो लाइनिंग के हमने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए कोई एक मेजर कहानी एक है जो मैं बताऊंगा, जिसको कराची के लिए ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट हमने किया है। लेकिन हमारा बिलीफ यही है कि हमने पानी पहले कंजर्व करके बचाना है। हमें पता है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें और गंदम की और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन हम किसी भी तरीके से किसी इलाके को बंजर करके किसी और इलाके को आबाद करने पे बिलीव नहीं रखते। और इसीलिए हम लाइनिंग पे जा रहे हैं ताकि हम पानी कंजर्व कर सकें और फिर हम एडिशनल एरियाज अंडर कल्टिवेशन ला सकें। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे एक रोड है छोटा सा, ये फ्लड में तबाह हुआ था। जुड्डो नौकोट रोड से लेके मीर जान मोहम्मद तक, ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में बैठे हैं तारिक टालपुर साहब, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इस साल में 3 कॉटन एंड शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट घोटकी, इसका कयाम किया तकरीबन 155 मिलियन रुपए में। बनाना के अंदर जो डिजीज एक आ जाती है पनामा विल्ट, उसके रिसर्च के लिए हमने एक टंडोजाम में एक लैब बनाई है, और उसके साथ साथ टंडोजाम में ये मैक्सिमम रेजिड्यू लैब बनाई है, ये PARC जो फेडरल इदारा है उसके साथ कोलैबोरेशन में। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इस साल 219 सोलर वाटर पंप्स दिए हैं, 434 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए हैं ऑन 50%, 100 सोलर पैनल्स, माउंटेड मूवेबल ट्रॉलीज, 9 सोलर सबमर्सिबल पंप्स और 1 सोलराइज कोल्ड स्टोरेज यूनिट। इसमें भी मेजॉरिटी वी हैव नॉट ट्रांसफर्ड 100% टू द आरी कार्ड, लेकिन ये अब गोइंग फॉरवर्ड सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि आपको हर चीज़ मिलेगी अगर आपके पास, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड एज अ फार्मर, ताकि वो रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपर रहे। ऑन फार्म एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे बताया, हम 251 किलोमीटर वाटर कोर्सेज की लाइनिंग हमने इस पिछले 1 साल में कंप्लीट की है। 8 सोलर सिस्टम ऑपरेटेड वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए हैं। 1 टनल फार्मिंग का एक हमने प्रोजेक्ट किया है। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम 21, जिसमें ये ड्रिप या आपकी जो है पिवट इरिगेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किचन गार्डनिंग किट्स, ये हमारा पुराना प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन इस साल हमने 9,901 जो खवातीन है उनको ये किचन गार्डन किट्स दी कि वो अपने घर के पीछे छोटा सा अपना कोई वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सके। न्यू सीड वैरायटीज़ हमने 36वीं प्रोविंशियल सीड काउंसिल, ये डिफंक्ट थी, काफ़ी दिनों से नहीं चल रही थी, इसको रिवाइव किया, इसकी मीटिंग की मिनिस्टर साहब ने, और इस साल उन्होंने 5 कॉटन के, 1 मस्टर्ड, 1 वीट और जजुबा का 6 वीट के इन्होंने नई इकसाम जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है। एग्रीकल्चर रिसर्च में हम काफ़ी सालों से भी चले गए। इस वक्त हम गोइंग फॉरवर्ड हमारी यही कोशिश है कि हम एग्रीकल्चर रिसर्च में मज़ीद काम करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इनिशिएटिव सोलराइज करने के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, नासिर शाह साहब इस एफर्ट को, और इसी कमरे में आई बिलीव इट वाज सितंबर या अक्टूबर, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख सोलर पैनल्स जो हमने देने वो यहाँ की थी। उन्होंने लाड़काना के बेनिफिशरीज और मलीर डिस्ट्रिक्ट के बेनिफिशरीज को शुरू किया था, और दिस एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोग्राम, जो भी आगे बताऊंगा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोलर पैनल्स। 2 लाख हम कर रहे हैं थ्रू अ प्रोग्राम विच वी इनिशिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक, और उसके अलावा हमने अपनी प्रोविंशियल ADP से रिसेंटली अप्रूव किया है 3 लाख एडिशनल यूनिट्स। तो इंशाल्लाह ताला 5 लाख यूनिट्स हम इस साल, तो ये 2 लाख कंप्लीट होंगे, अगले 3 लाख में भी कुछ शायद हो जाए, लेकिन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम 5 लाख यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। ये हम कर भी रहे हैं। इस पे काफ़ी हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो
डिट्रैक्टर्स हैं, उनको और कुछ नहीं मिलता तो वो शुरू कर देते कि जी बंतर बांट होगी, पता नहीं मैंने जाके उठा के अपने घर पे लगा दिया या नासिर शाह साहब ने लगा दिया। एक एक यूनिट हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेहतर डेटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है, और उस डेटाबेस के अंदर जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड 21 से 50, इसलिए कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, उनके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने बताया, उसके बाद सक्खर में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, कराची के अंदर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, नौशेर फिरोज, दादू, हैदराबाद, एंड दिस कंटिन्यूस। ये हमारे रमज़ान शरीफ में भी हो रहे हैं, और उसके रमज़ान के एकदम बाद और ज़्यादा तेज़ी से हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर देंगे। जैसे मैंने बताया 2 लाख सोलर सिस्टम, होम सोलर सिस्टम जो हम अभी दे रहे हैं, और 3 लाख और हम देंगे। इसके साथ साथ वही सोलराइज करने के लिए गवर्नमेंट जो हमारी इनिशिएटिव है, हम 24 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज कर सके हैं, टोटल 14 मेगावाट, और कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, और इनकी फ़ायदे भी मेरे पास लिखे हुए कि क्या फ़र्क क्या पड़ा है इनसे। ये हमने हेल्थ के लिए ना, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ओजा कैंपस, DHQ मीरपुर मातेलो, THQ मीरपुर खास, और बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज लाड़काना। सईद कुरैशी साहब बैठे हैं वाइस चांसलर डाउ के, वो आपको बता सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब गया था, ये तस्वीर डाउ की है, उन्होंने बताया था कि चल चुका था सिस्टम, हम जब इनाग्रेट करने गए तो उन्होंने बताया था कितना फ़ायदा हो रहा है। मैंने कल नंबर्स लिए थे, अगली शायद स्लाइड होगी, हाँ ये ओजा कैंपस की आपको नज़र आ रही है कि जो सोलराइज किया हुआ है डाउ का, वीडियो भी है। ये सेंट्रल जेल कराची, मलीर प्रिजन, गार्डन प्रोविंशियल हेडक्वार्टर और अल फला बेस कोरंगी, इनको हमने सोलराइज किया है। और मैंने कल ऐसे ही बैठा था, मैं ये रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा इसका फ़ायदा हुआ है वो देखे तो सही। तो मैंने 2023 और 2024 के बिल्स कंपेयर किए, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स के पहले कितना होता था, और 30% से 80%, एक्चुअली फरवरी में, राइट, 80% कम यूनिट्स इस फरवरी में, इसलिए इस साल सर्दी भी ज़्यादा थी, शायद पंखे भी चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, 80% यूनिट्स कम इस्तेमाल हुए। और ये हम मॉनिटर करते हैं, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट, ये हर महीने के बिल्स, एक हमारा बड़ा ये पुराना सिस्टम है कि हम पूरे सूबे के, इसलिए कि हमें आज से 8-10 साल पहले बहुत बड़ा मसला हुआ था कि फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हमारे इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली के बिल चढ़ा देती थी, और फिर हमें कहते थे कि जी 50 अरब देने, 60 अरब देने। मुझे याद है आज से आपको याद होगा 120 अरब से हम उसको कोई 20-25 अरब पे ले आए थे एक्चुअल बिल को, जब हमने ये काम शुरू किया। ये इनका काम है, आपके साथ भी करते होंगे, ये यूटिलिटी कंपनी का काम है कि बिल बढ़ा के देना, और सरकार का तो समझते हैं कोई वाली वारिस नहीं है, इसलिए जो बिल है वो कर दें। तो हम मॉनिटर करते हैं इस सिस्टम के फ़ायदे भी हम इसी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। ये और जो है हाई एजुकेशन में ये 10 कॉलेजेस लिखे हुए हैं, बाकी सेक्टर्स में कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट है, सिंध प्रोविंशियल म्यूजियम है, DG हेल्थ हैदराबाद का दफ्तर है, इनको हमने सोलराइज किया है, और इन सब को हम मॉनिटर भी करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। सिंध पीपल्स बस सर्विस हमने 2 साल पहले गालिबन शुरू की थी, और इसको कंटिन्यू किया है। इस पिछले 1 साल में हमने 2 जगहों पे, मीरपुर खास और शहीद बी नसीराबाद में, इसको जो एडिशनल 2 सिटीज़ में हमने इसको बढ़ाया। इससे पहले कराची, हैदराबाद, लाड़कानो, सक्कर, ये 4 सिटीज़ में थी, 2 और सिटीज़ में इसको बढ़ाया। डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, एवरीबडी वांट्स इट, इसलिए कि एक बेहतर तरीका है ट्रैवल करने का, और लोग चाह रहे हैं कि हमें ये मिले। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने देखा था कल रह गई, इन्होंने नहीं डाली, हमने ऑटोमेशन भी की है, वो बस कार्ड्स को
خود ہی میں نے شرجیل صاحب کے ساتھ انوگریٹ کیا تھا اس کا، وہ بھی ہم نے پچھلے سال یہ ٹرانسپورٹ میں کیا ہے۔ سندھ لائف سٹاک ایکسپو، کچھ دوست اگر اس میں گئے ہوں، بڑا کامیاب تھا، 150 کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کیا، 3 MOU سائن کیے، 145 بزنس ڈیلز اس کے دوران ہوئی۔ ہم نے شرمپ سیڈ لاوے پروڈیوس فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان، ہاکس پے ہیچری جو ہماری ہے، اس میں 12 ملین شرمپ جو ہے ان ڈفرنٹ پلیسز ان کنٹری انکلوڈنگ 10 ملین PLS اسٹاکڈ ان پنجاب، 21,600 کلو گرام شرمپ جو فارم سے ریز ہوئے ہیں وہ ہم نے ایکسپورٹ کیے ہیں ویٹنام کو، پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ ایک PPR، کوئی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، بیٹھے ہیں ملکانی صاحب، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ PPR کوئی اس کی ڈیزیز ہوتی ہے جس سے ہمیں تقریباً 20 ارب کا اکنامک لاس ہو رہا تھا۔ وہ ویکسین ہمارے جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے خود مینوفیکچر کیا اور وہ اویلیبل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم گھٹائیں گے، یہ بھی اسی سال ہم نے کیا ہے۔ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نے ایک ایکسلیٹر پروگرام فار ریڈکشن آف سٹنٹنگ کیا تھا، اور اس میں ہم کرتے کیا تھے کہ خاندانوں کو سو دیٹ دے گیٹ بیٹر نیوٹریشن، ہم بکریاں، پولٹری برڈز، مطلب وہی میں نے انڈے کھٹے وہ سب ہم دیتے رہے ہم بھی کرتے رہے یہ۔ اس سے اس سال 3,350 بینیفیشریز ہیں، پہلے 32,000 بینیفیشریز تھے، 1,20,000 ہاؤس ہولڈس کو ہم نے اوور دا ایئرز فائدہ دیا ہے، 50,000 ہاؤس ہولڈس کو ٹریننگ پرووائڈ کی ہے کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو بہتر خوراک دے سکیں۔ ہم کمیونٹی فش پونڈز بناتے ہیں تاکہ ان کو وہ پروٹین تھرو فش ملے، یہ بھی گاؤں میں کرتے ہیں۔ یہ بایو فلیک ایگریکلچر ٹیکنالوجی، یہ مجھے نہیں پتہ کیا ہے، وہ پروموشن آف ایگریکلچر اینڈ اوورکم نیوٹریشن ڈیفیشنسی ان تھر پارکر، پلیز لک اٹ اپ، میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے خود نہیں پتہ اس کا۔ اریگیشن، 2022 کا فلڈ آپ سب کو یاد ہوگا، سب افیکٹ ہوئے تھے اس سے، صوبہ سندھ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا، صوبہ سندھ کے لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے تھے۔ ہم نے اس کے بعد بہت انٹرونشنز کی ہیں، میں صرف 2 میجر انٹرونشنز بتاؤں، اور اس کے علاوہ تو پتہ نہیں وہ جو بتانے بیٹھوں گا تو اریگیشن پہ میرا خیال ہے میں آدھا دن ہم ادھر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں جو فلڈ ریہیبلیٹیشن آئی تھنک 2 ہی ہیں میجر انٹرونشنز، یہ ہم نے LBOD جو ڈسٹرکٹ میرپور خاص سے پھر ڈسٹرکٹ تھرپارکر کی طرف جاتی ہے، آپ کو شاید یاد ہو اس زمانے میں بڑے مسئلے بھی ہوئے تھے، وہ کٹ دینا چاہ رہے تھے، آگے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اور بہت بڑی آبویسلی لوگ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز اپنے اپنے علاقے کو ہر سیو کریں، ان کا کام بھی یہی ہے، اور کافی ایشوز ہوئے تھے۔ تو اس کی انٹرونشن ہم نے کی کہ پانی LBOD کا اسپائنل اسکیپ سے ہوتا ہوا، ڈورو پران سے ہوتا ہوا شکور لیک تک جائے، اور یہ ٹوٹل کاسٹ جام خان کتنی اس کی یاد ہے آپ کو؟ مجھے سم 3 or 4 بلین تو ہوگی کم از کم، 2.5-2.6 بلین میجر انٹرونشن تھی۔ اور ادھر جب میں گیا تھا لوگ اتنے خوش تھے اس سے، اس کی انوگریشن پہ گئے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ جو ہے اس میں ریگولیٹرز ہیں، اسپائنل ڈرین کو کیا ہے، اور اس کے بعد جو برساتیں جب بھی ہوئی ہیں ہماری LBOD پہلے سے بہت، اس لیے کہ اس کا نکال جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے، تو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ یہ دوسرا ہے، یہ میری کانسٹیٹوئنسی میں 7 شریف سے آگے اڑل ہیڈ ریگولیٹر ہے، اس کی کیپیسٹی 37,000 کیوسک سے بڑھا کے 83,500 کیوسک کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورا جو فلڈ کا پانی ہے جب بھی بارشیں ہوتی ہیں وہ پورا آ کے منچھر جھیل پہ آتا ہے اور وہاں سے دریا میں جا سکتا ہے۔ منچھر جھیل سے دریا کا نکال کے لیے یہ نیا ریگولیٹر ہم نے بنایا ہے، جیسے میں نے بتایا پہلے 37,000 کیوسک ہم نکال سکتے تھے، اب اس کا آلموسٹ 2.5 ٹائمز مور دین 2 ٹائمز سائز کا ہم پانی نکال سکتے ہیں۔ آگے اس کے ایک 2 اور آبسٹرکشنز ہیں، جو برج ہے انڈس ہائی وے پہ وہ بھی ہم نے خود ٹیک اپ کیے اور اس کو ہم ایکسپینڈ کریں تاکہ
سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن سیلاب کے نکال کے لیے اس کے کم سے کم نقصان ہو اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ اس کا ہے، یہ ڈیٹ بھی ہے 20 اگست 2024 کو اس کو ہم نے انوگریٹ کیا تھا. یہ اسی کی یہ چل گئی ہے. جو ہی برانچ کا ایکوڈکٹ ہے جو آر بی او ڈی کے اوپر سے جاتا ہے، یہ فلڈز میں ڈیمیج ہو گیا تھا. اس وقت اگین اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے، میں جہاں تعریف ڈیو میں کرنی چاہیے، وہ ویٹ کراپ بھی انہوں نے میک شفٹ ارینجمنٹس کی. یہ پرانا سوری، یہ آئی تھاٹ دس واز اے پوائنٹر. اگر وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک وہ ٹوٹا ہوا پرانا ایکویڈکٹ ہے. اس پرانے ایکویڈکٹ کو بھی انہوں نے آپریٹ کرایا تھا تاکہ پانی دے سکیں، اور پھر یہ نیا ایکویڈکٹ ہم نے بنایا ان ریکارڈ ٹائم 1.4 بلین روپیز کا. یہ بھی فلڈ افیکٹڈ سمجھ لے ایک انٹرونشن تھی میجر، اور میں صرف میجر اریگیشن ہی دکھا رہا ہوں آپ کو انٹرونشنز. سکھر براج کا آپ کو یاد ہوگا کہ ون فائن مارننگ پتہ چلا، بلکہ ایوننگ میں پتہ چلا کہ جی گیٹ نمبر 44 اور گیٹ نمبر 47 یہ ڈیمیج ہو گئے. اور یہ کب ڈیمیج ہوئے تھے؟ جون 2024. جون میں آپ کو پتہ ہے دریاؤں میں پانی زیادہ ہوتا ہے. اس وقت پونڈ لیول 199 سم تھنگ تھا، مجھے اگر صحیح طرح یاد ہے، جو کہ کافی اوپر ہوتا ہے، اور میجر تھا. آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک مہینے کے اندر اس کو ہم نے ریپیئر کیا تھا، یہ سوچ سے باہر ہے. اس سے پہلے 82 میں ایسا واقعہ ہوا تھا. اٹ ٹک مچ لانگر، اور 82 میں ہوا تھا وہ کلوجر سے پہلے، دسمبر میں کلوجر سے پہلے ہوا تھا. اس کے ایک دم بعد کلوجر تھا تو وہ افیکٹ نہیں ہوا. اس وقت ہمیں بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو چیلنج کو ٹیک اپ کیا، اور ہم نے ایک مہینے کے اندر یہ اس کی ایک ویڈیو بھی ہوگی نا جس طریقے سے کام ہو رہا تھا. ادھر یہ لوگ ہیں، یہ دریا کے اندر اوپر سے کافر ڈیم بند کرنے کے لیے اس کے گیٹ کے اب کام نہیں کر سکتے جب تک پانی کا بہاؤ نہیں روکتے. یہ جو بیگز ہیں نیچے ہم بیچتے تھے، وہ نیچے جا کے اس کا ہک نکالتے ہیں، اور ڈیپتھ اس کی 30-40 فٹ تو ہوگی ادھر میرا خیال ہے. تو یہ ایسی آپ کو دکھانے کے لیے کہ واٹ اٹ ٹیلز. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروگرام سکھر براج ریہیبلیٹیشن ورکس، اس کے سارے گیٹس ہم ریپلیس کر رہے ہیں اور اس کے سٹرکچر کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں. نیا سکھر براج بنانا ہمارے لیے شاید مشکل ہے، لیکن ہم اس کی لائف انشاءاللہ تعالی، مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے کیا ہے، بٹ 30-40 سال تو ہم 30 سال انہینس کریں گے تھرو دس انٹرونشن. سارے گیٹس ریپلیس ہو رہے ہیں، اسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں نا یہ دریا ہم نے آگے شاید اور بھی اس کی ہو، تو خیر یہ گیٹ انسٹالیشن کے دکھا رہے ہیں کہ 20 گیٹ مینوفیکچر ہو چکے ہیں. یہ 3 سال کا پروگرام ہے، 3 سالوں میں یہ کمپلیٹ ہوگا پورا پروگرام. اس میں یہ میں ایکچولی یہ دکھانا چاہ رہا تھا، یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ دریا کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے. سامنے پیچھے وہ آپ کو شکر کی نئی برج نظر آ رہی ہے، تو یہ گیٹ ریپلیس کرنے کے لیے ہیٹ پائلنگ کر کے کافر ڈیمز بن کے آپ کو دریا کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی کام چل رہا ہے اور جا کے دیکھیں. تو یہ سکھر براج ویسے انجینئرنگ ماول ہے، دنیا کا سب سے بڑا براج ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ گڈو براج پہ بھی، یہ گڈو براج کا تھا، اس کے گیٹس بھی ریپلیس کریں. یہ بھی اگین 3 سال کا پروگرام ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. ہم نے ڈیزرٹ کے اندر سولر ٹیوب ویلز دے کے، یہ تھر کے اندر اگر آپ دیکھیں مٹھی، ڈیپلو، اسلام کوٹ، ڈہلی، نگر پاکر اور چھاچرو سب تعلقوں میں 104 سولر ٹیوب ویلز دیے ہیں. 2 لاکھ لوگ اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں. 140 ولیجز ہیں. تقریباً 500 ملین روپے کا پروگرام ہے. اگست میں کمپلیٹ ہوا تھا اور اس کا آپ یہ افیکٹ بھی دیکھ رہے ہیں جو ادھر
1 ट्यूबवेल 8 एकड़ ज़मीन आबाद करता है, और ये उन लोगों के लिए है ताकि उनकी लिविंग। और इस साल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जो कौन सी थी रामू साहब, प्याज इतनी ज़्यादा थर के अंदर 5 बिलियन रुपीस की प्याज वहाँ से गई है, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ये जो इंटरवेंशंस की हैं। स्कार्प ट्यूबवेल रिहेबिलिटेशन ये ऑनगोइंग एक प्रोग्राम है हमारा। 475 हमने इस साल रिहेबिलिटेट किए हैं। 300 शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में, सक्खर में 100, खैरपुर में 75, 419 मिलियन का। आ जाए वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज पे, एक और एरिया जिस पे हमारा फोकस है, और इसमें अगर आप देखें तो ये वाला रतो देरो के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको इनाग्रेट किया था। 2 बड़े, एक रतो देरो और सकरंड का वाटर सप्लाई फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने इस साल कंप्लीट किए हैं। इस साल टोटल 71 वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम्स हमने कंप्लीट की हैं, टोटल तकरीबन 10 अरब रुपए की कॉस्ट से। 106 नॉन फंक्शनल वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीम्स को रिहेबिलिटेट किया है। 338 वाटर सप्लाई ड्रेनेज स्कीम्स को सोलराइज किया है, और 1498 RO प्लांट्स को फंक्शनलाइज किया है। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस है। ये उसी की कुछ तस्वीरें, ये डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिफरेंट काम किए हैं वाटर सप्लाई और ड्रेनेज में इस साल। शहीद बेनज़ीराबाद है, उमरकोट है, पिछले भी आपने देखी। सोशल सेक्टर्स पे आ जाते हैं। हमारे एजुकेशन, हेल्थ, बाकी जो सोशल सेक्टर्स हैं उन पे क्या इंटरवेंशन, आई बिलीव हमारा फ्लैगशिप हेल्थ ही रहता है, शायद हेल्थ से ही हम शुरू करेंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनाया है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है मैं पहले वो बताना चाहूँगा, फिर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी। NICVD डॉक्टर ताहिर सजीर बैठे हैं सामने। इस साल 14 लाख पेशेंट्स NICVD सिस्टम में ट्रीट हुए हैं। व्हील चेयर चाहिए, किसी को कोई और हियरिंग एड चाहिए, वो सब। डिजिटल क्लासरूम्स हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के, ये डेफ रीच के साथ ये सक्खर में डिजिटल क्लासरूम की इनॉग्रेशन का आप देख रहे हैं। ये भी बड़ा, आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज विजिटेड अ डेफ स्कूल और नॉट। वो एक हॉल में इधर एक क्लास चल रही होती है, उधर दूसरी, इतना शोर हो रहा होता है बिकॉज दे कांट हियर। तो साथ बैठ के वो एक तरफ मैथ्स पढ़ रहे, साथ में इधर इंग्लिश पढ़ा रहे, उधर जो है उर्दू पढ़ा रहे, एक ही क्लास साथ ही चल रही है और बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। इट्स अमेजिंग। अल्लाह ताला ने इंसान को भी मत दिए कि डिसेबिलिटीज़ के बावजूद वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकता है। ये क्या था, इंक्लूसिव जिम्नेजियम हमने गुलिस्तान जौहर में बनाए, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे और जो नॉट डिसेबल्ड बच्चे साथ मिलके ये NGOs के साथ हमने 21 NGOs को ग्रांट्स दिए, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिलीव करते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास पैशन है, उनको पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको हम सपोर्ट करें। ये भी अगेन ये क्या, सिंध इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन, अगेन हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आर्म फोर्सेस के अलावा सिर्फ सिंध हुकूमत के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। आर्म फोर्सेस आपको पता है कि जो हो जाते हैं डिसेबल म्यूटेशंस, एम्पुटेशंस होती हैं, और सब तो उनके पास बड़ा सिस्टम है। लेकिन उसके बाद हमारे पास ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में ये है। हम 4 नए यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं 3.6 अरब रुपए में। लाड़काना जो है वो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, और हैदराबाद जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। यूथ आर्ट एंड कल्चर बड़ा फोकस रहा है हमारा इस पे, और पिछले साल में आप देखेंगे सेवरल प्रोग्राम्स, यूथ इनिशिएटिव एक जो हम बड़े प्राउड है, हमने सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप कराई थी। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 16 टीम्स बच्चों की आई थी। इधर लियारी में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह भी हुआ था, चेयरमैन साहब गए थे और उन्होंने खिला था। इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो भी है।
इसके अलावा बहुत सारे फेस्टिवल्स हमने किए हैं, सिंध स्पेशल गेम्स, विंटर कोचिंग, प्रिजन कप खैरपुर के अंदर, गुटकी फेस्टिवल, थर फेस्टिवल, ये सारे पिछले साल के इवेंट्स हैं, यूथ और स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स, बाकी मैं भी सारे पढ़ नहीं रहा। क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, जिम्स जो हमने इस साल में सिर्फ बनाई हैं वो सारी इधर हैं। कराची के अंदर अहमद शाह साहब बैठे तो थे, यहाँ बैठे 44 मुल्क, मैं 42 कहा था तो नाराज हो गए थे पिछली बार मेरे ऊपर। 44 मुल्क, 38 दिन का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल किया। उसके अलावा कल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स हैं जो साइड में आप देख रहे हैं। एक मिनट, ये पहले आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, ये 290 मिलियन का। हमने अजरक को रजिस्टर कराया है आईपीओ के साथ। उसके साथ साथ यूनेस्को ने बोरिंदो, जो हमारा एक बोरिंदो एक इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसका मुझे नहीं पता था, ये मुझे परसों पता चला है कि सिर्फ एक बंदा रह गया है जो उसको बजा सकता है, ओनली वन, वो है हमारे पास। और अब उसके थ्रू हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपको, इसलिए कि आप लोग थक गए होंगे मेरी आवाज़ सुन सुन के, थोड़ा म्यूजिक आपको सुना देते हैं। चले जी, और भी कल्चर डिपार्टमेंट की काफ़ी इनिशिएटिव। जुल्फकार शाह साहब आप देखते हैं, एक हमारे दोस्त कहते हैं जुल्फकार शाह साहब को कि अगर आप अर्तुगल के ज़माने में पैदा होते तो आपका घोड़ा तो पता नहीं कितने मार चुके होते, इतना ट्रैवल करते हैं। तो खुदाबाद की मस्जिद को रिहेबिलिटेट करा है। इसके अलावा राइट पे आपको नज़र आ रहे हैं हमने जो कल्चर वालों ने की हैं काम। 3 नई पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई है, खैरपुर नाथन शाह में, उमरकोट में, सिजावल में। थर ऑफ रोड बाइक रैली, फर्स्ट एवर डेजर्ट ट्रेन, इसकी भी छोटी सी वीडियो है। मैं मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए मैंने कल जब ये परसों में देख रहा था, इन्होंने लाई थी, तो इसको, ये तो विंटर गुजर गया, अगले विंटर में प्रमोट करने के लिए हम इसको सब्सिडाइज करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम भेज सकें। इसलिए कि इस वक्त इसकी कॉस्ट वॉज 32,000 पर पर्सन। तो लोग नहीं अफोर्ड, किसी की फैमिली 4-5 बच्चों की है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम कुछ एक जो हमारे सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का, उसके जरिए हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। कराची का मैंने जिक्र नहीं किया, मैं कराची को अलग से ले लूँगा। देखिए कराची में क्या हम कर सके हैं इस साल। शाहराह भुट्टो हमने कुरंगी रोड से लेके तो शाह फैसल तक कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक हम कायदाबाद तक कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हम इसको M9 तक पहुंचाएंगे। और ये इस वक्त छोटा सा सेगमेंट 9.5 किलोमीटर का है। हमने 6,500 व्हीकल्स का ट्रैफिक काम पाया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब प्रोजेक्ट होगा। और इसी की कामयाबी देख के हम इसका फेज 0
जो हम करना चाह रहे हैं कि इसको हम पोर्ट से कनेक्ट करेंगे वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारी इस वक्त वो पोर्ट से कनेक्ट करने में टाइम होगा। कोरंगी रोड पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जब ये पूरा, बल्कि अभी से ही प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन जब पूरा तैयार होगा तो एक बॉटल नेक बन जाएगा, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। एक और प्लान है, उस पर थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं कि इसलिए उधर कंजेस्टेड एरिया बहुत है, कि एयरपोर्ट के लिए एक डायरेक्ट लिंक 1.25 किलोमीटर का बनता है, अगर एलिवेटेड बना लें कि उधर से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाए। बट अगेन वो पहला वाला तो हमारा कोरंगी रोड पे जो इंटरवेंशन है वो तो तैयार है, दूसरे वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक वीडियो भी है इसकी। ये बताया मैंने आपका एंड ऑफ द मार्च तक कि दूसरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक और कराची के लिए मेजर इशू पानी, K4 हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। K4 का एक बहुत बड़ा ब्लॉक ये है कि हमारे पास एडिशनल पानी का, आपको पता है बहुत सारे मसाइल हैं, आप आजकल हॉट टॉपिक भी है पानी। पानी अवेलेबल क्या इंडस वाटर सिस्टम में इतना है कि हम एडिशनल पानी दे सकें, क्या हम किसी और को डिप्राइव तो नहीं करेंगे। उसके लिए हमने कहा कि हम कल के भी फीडर को अगर लाइन करें और इसके एनालिसिस करके कैलकुलेशन करके हम इतना पानी बचा सकते हैं कि हम कराची को वो पानी दे सके जो लाइनिंग से बचेगा। ये तकरीबन 51.52 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट और हम साथ मिलकर कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में इशू ये कि सिर्फ जब क्लोजर, इसलिए कराची को पानी तो आप बंद कर नहीं सकते ना, तो ये जब क्लोजर होता है हम झील, किंजर झील को भर के उस क्लोजर के दौरान ही काम कर सकते हैं। अभी जो क्लोजर था 2 महीने पहले, उसमें हमने काम किया, हमने तकरीबन 35-40% काम कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह बाकी हमारा इरादा अगले जनवरी के क्लोजर में करेंगे। एक अप्रैल में छोटा क्लोजर आता है, पहले हमारा ख्याल था उसमें भी करें, लेकिन अब कुछ दिनों पहले हमने मीटिंग की थी तो जाम खान साहब ने कहा कि नहीं, फिर कराची की वाटर सप्लाई इफेक्ट होगी, हम नहीं कर सकते। तो अब दिसंबर जनवरी में जब क्लोजर होगा हमें काम करना पड़ेगा। इसमें जो है हम कराची को इस वक्त 600 MGD पानी मिल रहा है, उसको बढ़ा के 850 MGD कर सकेंगे। ये कनाल कैपेसिटी जैसे बताए, सारे ये डिटेल्स हैं इसके अंदर। ये आप जो काम हो रहा था, और बड़े मजेदार बात थी, इस वीडियो को दिखा के किसी और जगह बताया कि ये काम चल रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, वो लोग कहते हैं ना काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है मुझे कोई दिखा दे। ये सिर्फ ये काम चल रहा है सिंध में, इतना बड़ा इरिगेशन के हवाले से, और कहीं नहीं पाकिस्तान में चल रहा। एक और पानी का प्रोजेक्ट, अगेन हब कनाल से हमें 100 MGD पानी मिलता है, लेकिन हमारी नहर की जो आज से 30-40 साल पहले वापदा ने बनाई थी, उस नहर की हालत ऐसी हो गई थी कि 50-60 MGD से ज्यादा पानी हम नहीं उठा सकते थे। हमने एक नया कनाल 100 MGD का वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पुराना कनाल है उसको भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी पे आ जाए, तो हमारे पास 200 MGD पानी आ जाएगा। अगेन इस वक्त हमारी एलोकेशन 100 MGD की है। क्लाइमेट चेंज से आपने देखा है बारिशें हो रही हैं, हब हर साल भर रहा है। हमारा केस हम प्रेजेंट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारी जो एलोकेशन है वो बढ़ाई जाए और 200 MGD की जाए वहां से, ताकि हम इन दोनों नहरों को, और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर ये दोनों तैयार हो जाएंगी। अगस्त तक मेयर साहब, आज उन्होंने कहा था देर से थोड़े आएंगे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे, अगस्त तक हम मेन जो हमारी नहर है वो कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह उसके एंड ऑफ द ईयर तक हम जो पुरानी नहर है उसको भी रिहेबिलिटेट कर लेंगे। ये लाइन चैनल पूरा बन रहा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, पहले लाइन चैनल नहीं था। रोड्स की कुछ स्कीम्स हैं, ये 900 मिलियन की 4.25 किलोमीटर्स की कैफे प्याला से राशिद मिनास रोड हमने ख़त्म की है। इशारा नूरजहां अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक हमने ख़त्म की है। ये चाकीवाड़ा रोड, मेहराब खान ईसा रोड और टैनरी रोड इंक्लूडिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लियारी टाउन में, ये हमने ख़त्म की है। ये पेवर और स्ट्रीट लाइट लियारी है, वो आपको दिखा रहे हैं। स्वेरिज पेवर वाटर सिस्टम 3.5 अरब रुपए की टोटल स्कीम है। शेरशाह चौक से मिर्जा आदम रोड
की इंटरसेक्शन ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ 901 मिलियन की ये कंप्लीट की है। रफीकी शहीद रोड से कालापुल रोड शारा फैसल टू मेन कोरंगी रोड ये 526 मिलियन की कंप्लीट की है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इसका इफ्तिताह मैंने नहीं किया, इनॉग्रेशन नहीं की, लेकिन ये सच ये कोरंगी कॉजवे नया पुल बन रहा है। इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर ये आपको आप देख रहे हैं, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, ये तैयार करके देंगे। इसके साथ साथ जो पुराना जाम सादिक ब्रिज है उधर भी नया ब्रिज बन रहा है, वो नहीं दिखाया हमने, वो भी इसी साल हमने शुरू किया है आपके येलो लाइन में। उस पर इस साल कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर मई में, नेक्स्ट ओके ओके मैंने साहब बता रहे हैं इस साल मई में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। मेवाशाह कब्रिस्तान का ये रोड हमने अभी किया है। लंडी कोतल रोड, केएमसी बिल्डिंग को सोलराइज किया है। जमीला पंपिंग स्टेशन, पुरानी पंपिंग स्टेशन थी, इसमें बहुत इश्यूज थे, 200 मिलियन की ग्रांट देके हमने इसको रिहेबिलिटेट किया है। एयरपोर्ट लिंक रोड है पहलवान गोड से एयरपोर्ट तक, ये इस साल कंप्लीट किया है। जी अलाना रोड लियारी की एंट्रेंस जब होती है वो रोड हमने अभी बनाया है। ओल्ड टर्मिनल रोड, ये जहाँ हमारा पोर्ट की तरफ बहुत बुरी हालत थी इस रोड की, ये कंप्लीट किया है। किडनी हिल पार्क की सोलराइजेशन की है। कुछ ईदगाह और फुटबॉल ग्राउंड्स जो हैं उनका आपको बताता हूँ। अकबरी प्ले ग्राउंड, ये फरवरी 2025 में 221 मिलियन का 7,800 स्क्वायर मीटर का। हनीफ शहीद पार्क, लाल स्पोर्ट फुटबॉल स्टेडियम शांति नगर, अकबरी प्ले ग्राउंड, ये शायद पहले भी हो गए, दोबारा आ गए या शायद ये अलग हो। कराची के अंदर पिछले 1 साल में हम बहुत सुनते हैं हालात खराब हैं, यस देयर आर इश्यूज, मैं कभी नहीं कहता कि इश्यूज नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर में इश्यूज तो होंगे, दुनिया के हर शहर में होते हैं, लेकिन हमने इस साल में आइडियाज़ 2024 कराई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनॉग्रेट इधर हुई थी। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज, वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान टीम का टूर, अमन एक्सरसाइजेस जिसमें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 14 मुल्कों के चीफ्स ऑफ नेवी आए थे कराची, वो किया है। जो थे पौरियों के इमाम सईदना मुफद्दल सैफुद्दीन, वो आए थे इस साल, और कितना स्मूथली वो सारा काम हुआ। ईरानियन प्रेसिडेंट की विजिट थी, अनफॉर्चुनेटली बाद में उनकी शहादत हो गई वहाँ ईरान में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराई कराची में। सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी, वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त कराची में ब्रीफिंग दे रहे हैं।